آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہی محفل میں پہنچے اور جتنے بھی محفل میں بیٹھے تھے سارے لوگ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے کھڑے ہو گئے۔ جب وہ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہونے کے بعد آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں تم کیوں کھڑے ہو گئے ہو؟ وہ کہتا تم کیوں کھڑے ہو گئے ہو؟ تو آپس میں کہتے ہیں ہم نے محمد کو دیکھا، پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم کھڑے کیسے ہو گئے ہیں، کس نے ہمیں کھڑا کر دیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و شان پر قربان جائیے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ دن بہ دن اسلام بڑھتا چلا جا رہا ہے، دن بہ دن اسلام کے نام لیوا بڑھتے جا رہے ہیں، دن بہ دن اسلام ترقی کر رہا ہے، دن بہ دن اسلام کے چاہنے والے بڑھتے جا رہے ہیں۔ جب ابو جہل نے منظر دیکھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاذ اللہ اسلام گھٹ جائے، بانی اسلام مٹ جائے، اسلام کے نام لیوا دنیا سے نیست و نابود ہو جائیں، لیکن اسلام دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے، اسلام دن بہ دن ترقی کر رہا ہے، تو ابو جہل نے سوچا لاؤ کسی کو بلایا جائے۔ ابو جہل اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرتا ہے، مشورہ کرنے کے بعد حبیب یمنی کے پاس خبر پہنچاتا ہے کہ آپ یمن سے فوراً مکہ شریف آ جائیے، آپ سے کچھ مشورہ کرنا ہے۔ جو ہی ابو جہل نے حبیب یمنی کے پاس خبر بھیجی، حبیب یمنی کو خبر ملتی ہے، حبیب یمنی یمن سے چلنے کے بعد مکہ شریف آئے، ابو جہل سے ملاقات کرتے ہیں۔ ابو جہل سے ملاقات ہوئی، ابو جہل نے بتایا کہ مکہ میں محمد بن عبداللہ ایک نیا دین لے کر کے آیا ہے، جس نے بہت سے چاہنے والوں، بہت سے لوگوں کو اپنا شیدائی بنا لیا ہے، جس کے نام لیوا دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں، اسلام دن بہ دن ترقی کر رہا ہے۔ حبیب یمنی نے کہا تھا ابو جہل تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ ابو جہل نے بڑا خاطر و تواضع کی کرنے کے بعد کہتا میں یہ چاہتا ہوں کہ اسلام کا نام و نشان دنیا سے مٹ جائے، میں یہ چاہتا ہوں بانی اسلام کو مٹا دیا جائے۔ اتنا کہنے کے بعد حبیب یمنی نے کہا ابو جہل سن، میں نے تیری تو سن لی ہے، ذرا محمد کی سن لوں اور محمد کو دیکھ تو لوں، محمد ہے کیسے؟ سبحان اللہ۔ حبیب یمنی نے کہا ابو جہل میں نے تیری سن لی ہے، ذرا محمد کو دیکھ لوں، ان کی سن لوں اور دیکھ لوں کہ محمد ہے کیسے۔ میں نے سنا ہے جو ان کو دیکھ لیتا ہے وہ انہی کا ہو جاتا ہے۔ جب حبیب یمنی نے اتنا کہا ابو جہل گھبرا تو گیا لیکن کچھ کہہ نہ سکا، اس لیے جانتا تھا جس نے محمد کو ایمان کی نظروں سے دیکھ لیا ہے، جس نے محمد کو محبت سے دیکھ لیا ہے وہ انہی کا ہو گیا ہے، کہہ نہ سکا۔ حبیب یمنی نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں خبر بھیجی کہ میں یمن سے آیا ہوں، آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کے پاس وقت ہو تو آپ آ کر کے ہم سے ملاقات کر لیجئے۔ یہ خبر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو بتایا اور چلنے کا حکم دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اٹھے، نبی چلے، ابوبکر چلے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے ہی اس محفل میں بیٹھے جہاں پر ابو جہل کے ہمنوا ساتھی، ابو جہل کے چاہنے والے محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، جی ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں پہنچے تو جتنے محفل میں بیٹھے تھے سارے لوگ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔
जब सारे लोग खड़े हो गए होने के बाद उतबा ने शैबा से कहा तुम क्यों खड़े हो गए? शैबा ने उतबा से कहा तुम क्यों खड़े हो गए? आपस में वो एक दूसरे से कहते तुम क्यों खड़े हो गए हो? तो वह कहते हैं कि जब मैंने मोहम्मद को देखा मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे खड़ा किसने कर दिया है। सुभान अल्लाह। कहते जब मैंने नबी को देखा मुझे पता ही नहीं चला कि हमें खड़ा किसने कर दिया है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हुए, बैठ गए। बैठने के बाद कहते हैं हबीब यमनी बोल तूने मुझे क्यों बुलाया? हबीब यमनी कुछ बोल ना सका। किसी में लब कुशाई की हिम्मत नहीं, किसी में इतनी जुर्रत नहीं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लब कुशाई कर सके, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू कर सके। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हबीब यमनी बोल तूने मुझे क्यों बुलाया? हबीब यमनी ने कहा मोहम्मद मैंने आपकी बड़ा तारीफें सुनी हैं, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है और यह भी सुना है कि आपने नबुव्वत और रिसालत का ऐलान किया है, यह भी सुना है कि आपने नबुव्वत का ऐलान कर दिया है, आप नबुव्वत के मुद्दई हैं, आप नबी होने का दावा कर रहे हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हाँ मैं अल्लाह का पैगंबर हूं, इस दुनिया इंसानियत का आखिरी रहनुमा हूं। मैं तुमसे भी कहता हूं क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू इन्नी रसूलुल्लाह, तुम सबके सब ला इलाहा इल्लल्लाह कहो फलाह पा जाओगे, मैं अल्लाह का पैगंबर हूं। इतना कहना था। हबीब यमनी ने कहा आपने नबुव्वत और रिसालत का ऐलान किया है लेकिन आपका मौजज़ा क्या है? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ऐ हबीब यमनी जो तू चाहे मैं तुझे वो मौजज़ा दिखा सकता हूं। और ये जुमला वही शख्स बोल सकता है जिसको अल्लाह ने इतना बड़ा पावर, इतना बड़ा मकाम और मर्तबा, इतने बड़े मनसब पर फाइज किया हो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हबीब यमनी जो तू चाहे मैं तुझे वो मौजज़ा दिखा सकता हूं। हबीब यमनी कहता जो मैं चाहूं? आका करीम ने इरशाद फरमाया हाँ जो तू चाहे। हबीब यमनी कहता मोहम्मद जमीन का तो मौजज़ा देखूंगा नहीं, इसलिए कि जमीन पर तो जादूगर भी जादूगरी के जरिए से अपने कमालात दिखा सकता है। मोहम्मद मैं आपसे आसमान पर मौजज़ा देखना चाहता हूं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हबीब यमनी बोल तू क्या चाहता है? हबीब यमनी ने कहा मोहम्मद रात का वक्त है, चांद निकला हुआ है, मैं चाहता हूं आप चांद के दो टुकड़े कर दीजिए। इतना कहना था। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ उंगली का इशारा करने से पहले पूछा अरे चांद ये बता क्या तू मेरी उंगली के इशारे से अपने अपने दो टुकड़े कर देगा? चांद ने कहा मोहम्मद जब जमीन का बिलाल आपके नाम पर जब जमीन का बिलाल आपके नाम पर अपना गला कटाने के लिए तैयार है तो आसमान का हिलाल आपकी उंगली के इशारे पर अपना सीना चाक करने के लिए भी तैयार है। सुभान अल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगुष्ठ मुबारक नबुव्वत वाली अंगुष्ठ मुबारक का इशारा किया, नबुव्वत वाली उंगली को उठाया, अंगुष्ठ मुबारक का इशारा चांद की तरफ किया, चांद दो टुकड़े हो गया, आधा टुकड़ा इधर आधा टुकड़ा उधर। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के दो टुकड़े कर दिए। करने के बाद कहते हैं हबीब यमनी बोल इसे जोड़ दो या कयामत तक के लिए टुकड़े ही रखूं? हबीब यमनी ने कहा आप जोड़ दीजिए। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर उंगली का इशारा किया, जो चांद जो दो टुकड़े हो गया था फिर आपस में जुड़ जाता है। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतो व रिजवान की नजर जब इस हदीस पाक पर पड़ती है, बरेली का ताजदार कहता है हबीबी या रसूल अल्लाह सूरज उल्टे, हबीबी या रसूल अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको वो मकाम व मर्तबा की अता किया है कि आपकी उंगली के इशारे से चांद के दो टुकड़े हो जाते हैं। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। हबीब यमनी ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब ये मौजज़ा देखा,
देखने के बाद शशोपंज में डूब गया। डूबने के बाद कहता अबू जहल सुन ले, उतबा शैबा सुन लो, ये मोहम्मद जिन्होंने नबूवत और रिसालत का ऐलान किया है ये जादूगर नहीं है, इसलिए जादू जमीन पर चल सकता है, जादू आसमान पर नहीं चल सकता है। हबीब यमनी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मौजज़ा देख चुका था। हबीब यमनी से सरकार ने फरमाया, ए हबीब यमनी बोल, तू दूसरी चीज क्या चाहता है, दूसरी चीज क्या चाहता है? हबीब यमनी ने कहा, अब मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद बता दीजिए मैं दूसरी बात क्या चाहता हूं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म पर कुर्बान जाइए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हबीब यमनी सुन, दूसरी चीज तू ये चाहता है कि तेरी एक लड़की है जो आंखों से अंधी है, जबान से गूंगी है, कानों से बहरी है, पैरों से चल नहीं सकती, हाथों से कामों काज नहीं कर सकती, वो तुझ पर बोझ बनी हुई है। तू चाहता है कि मेरी बेटी को शिफा मिल जाए। इतना कहना था, हबीब यमनी नबी के कदमों पर गिर जाता है। गिरने के बाद कहता, या रसूल अल्लाह, मैं यमन का रहने वाला हूं, मक्का इतनी दूर है, लेकिन या रसूल अल्लाह आपने मक्का में बैठ करके मेरी लड़की के बारे में बता दिया है। या रसूल अल्लाह, मैं जान गया हूं कि आप अल्लाह के पैगंबर हैं, आप जादूगर नहीं। या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह के पैगंबर हैं। इतना कहना था, आका करीम ने इरशाद फरमाया, ए हबीब यमनी सुन ले, मैंने मक्का में बैठ करके तेरी लड़की जो यमन में है यहीं से उसको शिफा पहुंचा दी है। हबीब यमनी ने इतना सुना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी बेटी को शिफा पहुंचा दी है। हबीब यमनी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर गिर जाता है। गिरने के बाद कहता है, अबू जहल सुन ले, उतबा शैबा सुन लो, मक्का के दरो दीवार गवाह हो जाओ, मैं सिद्क दिल से कलमा पढ़ता हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सिद्क दिल से कलमा पढ़ा, पढ़ने के बाद दाखिले इस्लाम हो जाता है। कलमा पढ़ के आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक को बोसा देता है। हबीब यमनी ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपने मेरी बेटी को शिफा पहुंचा दी है, आपने मेरी बेटी को ठीक कर दिया है। या रसूल अल्लाह, अब मैं मक्का शरीफ से यमन जाना चाहता हूं। हबीब यमनी ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत ली। लेने के बाद मक्का शरीफ से मुल्क यमन के लिए रवाना हुए। और यमन वो शहर है जिस शहर के लिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई थी, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी यमनना। ए अल्लाह, तो हमारे मुल्क शाम में बरकत फरमा दे, ए अल्लाह तो हमारे मुल्क यमन में बरकत फरमा दे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुल्क शाम और मुल्क यमन के लिए बरकत की दुआ फरमाई थी। हबीब यमनी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत लेकर के मक्का शरीफ से यमन के लिए रवाना हुई। जब अपने शहर यमन में पहुंचे, रात का वक्त था, दरवाजा बंद था। आपने दरवाजे पर दस्तक दी, आवाज देते हैं, बेटी दरवाजा खोलो। वही लड़की जो पहले सुन नहीं सकती थी, वही लड़की जो पहले चल नहीं सकती थी, वही लड़की जो पहले बोल नहीं सकती थी, अपने अपने बाप की आवाज को सुनकर के कहती है, अब्बू जान ठहरिए, मैं अभी आ गई हूं। वही लड़की अपने वालिद मोहतरम के करीब जाती है, दरवाजा खोलती, अपने बाप को देख करके कलमा पढ़ना शुरू कर देती है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब बाप ने मंजर देखा कि बेटी ने कलमा पढ़ लिया है, बेटी दाखिले इस्लाम हो गई है, बेटी के जिस्म से सारी बीमारियां निकल चुकी हैं, अब उसके बाप ने कहा, बेटी ये बता तेरी बीमारियां दूर कैसे हो गई हैं? बेटी ने कहा, अब्बू जान, आपने मैंने तो तुम्हें कलमा पढ़ाया है कि तुमने कलमा पढ़ा या नहीं पढ़ा है? तो हबीब यमनी ने कहा था, बेटी मैं तो बड़ा खुशनसीब हूं, बड़ा नसीबे वाला हूं, बड़ा मुकद्दर वाला हूं। बेटी मैं मदीना शरीफ में गया था, जिस नबी का तूने कलमा पढ़ा है, तो उस नबी ने तुझे यहां आकर के कलमा पढ़ा, उस नबी का तूने जो कलमा पढ़ा है, ये कलमा मैंने मदीना शरीफ में जाकर के मोहम्मद का दीदार करके उनके सामने उनका कलमा पढ़ा है। मैं बड़ा मुकद्दर वाला हूं, बड़े नसीबे वाला हूं। बेटी ने कहा था, अब्बू जान ये तो सच है कि आप नसीबे वाले हैं, लेकिन आपसे ज्यादा नसीबे वाली मैं हूं, इसलिए कि आप मदीना शरीफ गए हैं, वहां जाकर के आपने कलमा पढ़ा है, और मैं मुकद्दर वाली इसलिए हूं कि मदीने वाले आका ने यहां आकर के मुझे कलमा पढ़ाया है, अपनी ज़ियारत से मुशर्रफ भी फरमाया है। सुभान अल्लाह। ये शान है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये मकाम है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने
اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام و مرتبہ عطا کیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، کبھی انگلی کے اشارے سے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس کر دیا، کبھی انگلی کے اشارے سے، کبھی آپ کی گھائیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے۔ تو اسلامی بھائیوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا پیار کرو، اس لیے نبی کی محبت یہاں بھی کام آئے گی، مرنے کے بعد قبر میں بھی نبی کی محبت کام آئے گی۔